Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 11th SPCC chapter number 1 Communication and its method. In the part 1 commercial communication. So already we have seen a part of this. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with the today's portion. So last time, before starting the today's current topic, what we have seen on the last portion, let us do a short revision of that portion. Last time we have seen that for every human being the basic need is communication. Without expressing the feelings and the goodness or the exchange of the idea, a human being cannot survive for a long. So the basic need of each and every human being is the communication. What is communication? Communication means the interaction of one person of one's feeling or experience or anything or sharing something to someone else and getting the feedback again is considered as the communication in a very proper manner if you are seeing. After that we have seen that the communication that we are doing on the day-to-day life is considered as an routine communication. But what is commercial communication? What is the effective communication to sustain ourselves in any job or any place or in a very formal manner? That we are going to see up in the chapter. Rather than that, we have seen there are various ways of communicating, methods and things that we are carry forwarding in the communication. That we have seen in the introduction in a very well manner. After that, we have seen the meaning of communication. The word communication, where it came from. The word communication is an English word, but basically it is derived from the Latin word communicare. Communicare means to share, to exchange, to interact or to participate. So such meaning of the communications were being seen in the detailed manner. So up till this we have discussed on the previous portion in a very depth manner. So I hope you all have understood that portion in a very well manner and you always get the particular content in a very better manner. So now we are completing here the revision. So now let us move on with the line-to-line explanation of the portion from the textbook in the further video. So students, now let us start up with the today's portion. So last time we have completed up to the introduction of the communications chapter number 1. So today we are here to see what is commercial communication. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. The process of communication undertaken for commercial purpose is called commercial communication. A business has to remain in contact with two different groups, the manufacturer and the sales of the goods, from one group and their customer from another group. In order to remain in constant contact, the latter turns out to be an important tool. Both these groups acting as the representative or messenger with. Thus, the basic activities of business like purchase, sales, advertising and marketing are carried out through letters. It is called commercial communication. तो तुम्हें पता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम जब कमर्शियल पर्पस से करते हैं यानी बिजनेस के हेतु से करते हैं, जॉब के रिलेटेड करते हैं, तो उसे कमर्शियल कम्युनिकेशन माना जाता है. कोई भी बिजनेसमैन को दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है कॉन्टैक्ट के अंदर. तो कौन वो दो लोग हैं? फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर और दूसरे हैं सेलर. ये एक ग्रुप है जो मैन्युफैक्चरर और सेलर का है, दूसरा है कस्टमर. कंटिन्यूअसली ये दोनों ग्रुप के साथ कॉन्स्टेंटली उनको कांटेक्ट में रहना पड़ता है, इसीलिए वो लेटर को एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह देखते हैं. यहाँ पे पर्पस यही है कि जो ग्रुप ऑफ लोगों के साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, एज अ बिजनेसमैन यू नो दैट कि एज अ बिजनेसमैन ही कैन नॉट बी इन कॉन्टेक्ट विथ एवरीवन ईच एंड एवरी टाइम, इसलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव या मैसेंजर को अपॉइंट करता है जॉब में जो ये लेटर्स को हैंडल आउट करता है. तो बेसिक एक्टिविटी कोई भी बिजनेस का क्या होता है? परचेज करना,
सेल्स करना, एडवर्टाइजिंग करना, मार्केटिंग करना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें लेटर के थ्रू किया जाता है। अगर हमें परचेस करना है तो उसके लिए एक लेटर, ऑर्डर लेटर लिखने का, अगर हमारा कोई कंप्लेंट है परचेस जो मटेरियल किया उसमें, उसके लिए एक लेटर लिखना है। इस तरीके से हर एक चीज़ के लिए लेटर के थ्रू ही कम्युनिकेशन किया जाता है। तो लेटर के थ्रू जो कम्युनिकेशन कैरी आउट किया जाता है उसे कमर्शियल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ कमर्शियल कम्युनिकेशन एंड अप होता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी चीज को करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? लेट अस नो दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. Information remains the same. Denominating factors whether we refer to communication in general or commercial communication. Technically speaking, the agencies taking part in the process of communications get involved harmoniously and exchange information, thought, concept, emotions or message. As part of the process of communication, an individual or a group attempt to convey information message to another individual or group wherein different mediums and tools are used. At the end of the process of exchange of idea, feedback is received from the other and receiver. Let us know, understand the whole procedure of the communication as per its different stages. The process of communication is successfully carried out throughout the following stage. इंफॉर्मेशन कॉमन डिनोमिनेटिंग फैक्टर माना जाता है, यानी हर इंसान इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। हमें इंफॉर्मेशन के लिए ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जनरली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम किसी से कब बात करते हैं? जब हमें उन्हें कुछ बताना होता है, यानी हमें उनको कुछ इन्फॉर्म करना होता है। अगर वो कुछ हमें इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो एज ए रिसीवर हम उसको सुनते। तो इंफॉर्मेशन एक मेजर फैक्टर इसके अंदर माना जाता है जिसे हम टाल ही नहीं सकते। तो कम्युनिकेशन जनरल हो या कमर्शियल कम्युनिकेशन हो, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होता है। टेक्निकली अगर हम बात करते हैं, जो भी एजेंसी पार्ट लेता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उन्हें हार्मोनियसली यानी एक अच्छे से पीसफुल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना पड़ता है। गुस्से में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दोगे तो सामने वाला कभी नहीं समझेगा, इसलिए शांति से हार्मोनियसली हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करना पड़ता है या लेना पड़ता है। जब भी हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या हमारा कोई थॉट हमें किसी को बोलना है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट, जैसे अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ वो कॉन्सेप्ट है, कंटेंट, एजुकेशन, कॉन्सेप्ट बताना है, इमोशंस बताना है, फीलिंग सैड है, ये है वो है, वैसा कुछ बताना है, या कोई मैसेज देना है कि इतने बजे ये आने वाले। इस तरीके से कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन, थॉट, कॉन्सेप्ट या कोई भी इमोशंस हमें किसी के साथ शेयर करना है या बताना है, तो उसके लिए हमें बहुत ही हार्मोनियसली यानी पेशेंस एंड काम वे में उसको बताना पड़ता है। तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के एक पार्ट में हमने ये देखा है, इंडिविजुअल हो कि ग्रुप हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन वो किसी और को देना चाहते, वेदर वो भी ग्रुप हो कि इंडिविजुअल, जैसे मुझे पर्टिकुलरली आपको देना, मैं इंडिविजुअल हूँ बट मैं अभी एक ग्रुप को डिलीवर कर रही हूँ, वैसे आप एक इंडिविजुअली मुझे कुछ बताना, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या इंडिविजुअल टू ग्रुप या ग्रुप टू ग्रुप, इस तरीके से कोई भी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाए उसमें डिफरेंट मीडियम्स यूज किए जाते हैं या टूल्स यूज किए जाते हैं। अभी मैं आपको ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ बट मैं इंटरनेट के मीडियम से ये चीज कर रही हूँ। इवन वी कैन से दैट ऑडियो और विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन मैं आपके साथ कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें डिफरेंट मेथड और टूल्स को यूज करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी हम ये जो प्रोसेस होता है एंड जब एक्सचेंज ऑफ आइडिया मैं आपके साथ करती हूँ, उसके बाद आपका जो फीडबैक मुझे मिलता है कमेंट या उस चीज से, उससे मुझे पता चलता है कि रिसीवर को वो किस तरीके से मिला है। तो इस तरीके को, इस प्रोसीजर को हम डिटेल में कम्युनिकेशन को कैसे डिफरेंट स्टेज में देखा जाता है उसके बारे में डिटेयली देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नीचे जो स्टेप्स दिए गए, 7 स्टेप दिए गए, उस स्टेप से देखे जाते हैं। सो लेट अस मूव ऑन दैट एंड सी इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। First one, speaker, sender and transmitter. The sender or speaker with the intention of sending information message initiate the process of communication. तो स्पीकर, सेंडर, ट्रांसमिटर, जो इंसान आपको भेज रहा है उसको स्पीकर बोला जा सकता है, सेंडर बोला जा सकता है या ट्रांसमिटर बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ट्रांसमिट कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको भेज रही हूँ। तो जो सेंडर और स्पीकर होता है उसका इंटेंशन ये होता है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या मैसेज
उसको आप तक पहुंचाना है, इसलिए वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का इनिशिएट करता है। कौन इनिशिएट करता है? जो सबसे पहले बोलने की कोशिश करता है या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, वो इनिशिएट करता है। यानी आज का एग्जाम्पल हम इस वीडियो से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अभी आपके लिए वीडियो भेज रही हूँ, इसका मतलब मैं आपके लिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन कर रही हूँ। मैं आपको वो चीज भेजने की, मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। Second is encoding. It is a process undertaken by the speaker, sender. He arranges, changes the concept, idea using appropriate language, distinct sound, medium, so that the receiver, individual or group can sense communication. Second process होता है एनकोडिंग। मैंने सोच लिया मुझे अब तक ये टॉपिक समझाना है, तो कैसे समझाऊंगी? तो सेकेंड टॉपिक आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का एक ऐसा प्रोसीजर माना जाता है जहाँ स्पीकर, यानी मैं स्पीकर हूँ अभी, तो मैं आपको ये मैसेज यानी ये टॉपिक को कैसे समझाऊं, उसके लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझाना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा लैंग्वेज मुझे लेना पड़ेगा, कौन से वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, मेरे साउंड्स कैसे मैं यूज कर सकती हूँ, मीडियम कैसे मैं आपको भेजूं, ये जो है मैं आपको अभी इंटरनेट के थ्रू भेजने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने अभी सोचने के बाद मैंने क्या किया, आपके लिए कॉन्सेप्ट, आइडिया, वीडियो सारे आपको मैंने अभी बना दिया। बना के मैंने यानी इस तरीके से मैं काम करूंगी, इस तरीके से इंडिविजुअल यानी आप तक ये कम्युनिकेशन कैसे पहुंचे, ये सारा प्लानिंग मैंने एनकोडिंग कर दिया। थर्ड है मैसेज। The speaker sender employing various device, tool, means, medium, properly formulated concept idea which is called information message. अब मैंने सोच तो लिया कि मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, ये टॉपिक समझाऊंगी, इस तरीके से करूंगी, वीडियो बनाऊंगी। अब उसको बनाना है। ऑब्वियसली जो सेंडर होता है वो क्या करेगा, डिवाइस को एम्प्लॉय करेगा। मैंने मोबाइल लिया, टूल में क्या इंटरनेट लिया, मीन्स क्या है टेक्स्ट बुक का पीडीएफ, मीडियम क्या है मैं विजुअली आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट और आइडिया को मैंने बना दिया। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन या मैसेज हुआ। नेक्स्ट है चैनल या मीडियम। The device or tool such a language, picture, sound or letters used to transmit information, image are called medium. The speaker selects appropriate medium keeping in mind the requirement and the सिचुएशन। अब चैनल या मीडियम, तो डिवाइस और टूल तो मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इंटरनेट के थ्रू भेजूंगी, लैंग्वेज मैंने डिसाइड कर लिया, पिक्चर मैंने यूज कर लिया, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ का पिक्चर है, साउंड मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है, लेटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब मैंने इंफॉर्मेशन आपको बता दिया, मैसेज बन गया। अभी इसको मैं किसी मीडियम के थ्रू भेजूंगी, तो किस मीडियम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो स्पीकर क्या करेगा, यानी मैं क्या करूंगी, एक स्पेशल मीडियम चूज करूंगी मेरे दिमाग के हिसाब से। तो यूट्यूब मैंने चूज किया और सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी पैंडेमिक है तो ऑनलाइन है, तो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू ये मैसेज यानी ये वीडियो आपको भेज रही हूँ। सो नेक्स्ट इट इज डिकोडिंग। The process of understanding the coded information message that the speaker has sent it using particular form, tools, medium is called decoding. It is done by the receiver using the same tool and medium. अब मैंने तो आपको YouTube में भेज दिया वीडियो, अब आपका काम है, आप क्या करोगे, डिकोडिंग करोगे। यानी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन या मैसेज जो स्पीकर ने यानी मैंने आपको सेंड किया पर्टिकुलर फॉर्म में, YouTube वीडियो में भेजा, आपको भेजा है टूल इंटरनेट के थ्रू, आप क्या करोगे, उसको सुनोगे, देखोगे, समझोगे, तो उसे डिकोडिंग बोला जाएगा। रिसीवर क्या करेगा, सेम टूल मैंने आपको यूट्यूब से भेजा था, आप भी यूट्यूब से ही देखोगे, मैंने आपको इंटरनेट के थ्रू भेजा, आप भी इंटरनेट यूज करके भेजोगे, सेम टूल और मीडियम को यूज करके आप उसको डिकोड यानी समझने की कोशिश करोगे। Sixth is listener receiver. The person who receives information message sent by the speaker send it's called the listener receiver. The process of communication is undertaken keeping in mind the receiver. तो अब आपने इसको रिसीव किया, आप इसको डिकोड कर रहे हो, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो, यानी स्पीकर जो भी चीज आपको भेज रहा है उसको जब आप सुनते हो या रिसीव करते हो तो आप उसके लिसनर या रिसीवर हो जाते हो। और आप मैं कोई भी मैसेज या कोई भी वीडियो बनाती हूँ, किसको दिमाग में रख के वो बनाती हूँ, आपको। यानी स्पीकर जब भी कोई चीज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को बनाता है तो वो रिसीवर को दिमाग में रख के वो चीज करता है। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज फीडबैक। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन thus proceeds further and ends with the response from the receiver which is called feedback. The feedback from the receiver is very important as it determines the success of the process.
अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आगे बढ़ता है। जैसे मैंने आपको भेज दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, आपने सुन लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि आपको कैसे लगा वीडियो, किस तरीके से लगा, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है कि नहीं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो फीडबैक क्या होता है, जैसे ही आपको ये चीजें मिल गया, आपने वीडियो सुन लिया, आपको समझ में आएगा, तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। कैसे रिस्पॉन्स करोगे, एज ए रिसीवर आप फीडबैक दोगे। आपने कमेंट दिया यूट्यूब में कि नाइस एक्सप्लेनेशन, जल्दी समझ में आ गया, आपका वीडियो हमें अच्छे लगते हैं, आपका एफर्ट्स हमें अच्छे लगते हैं, इस तरीके से आप कमेंट देते हो, इट मीन्स आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। तो फीडबैक से क्या होगा, जो सेंडर है उसको पता चल जाता है कि रिसीवर को इंपॉर्टेंटली वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया। इस तरीके से प्रोसेस, जो मैंने कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था, वो सक्सेसफुली एंड हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज फीडबैक हमें बताता है। तो इस तरीके से ये 7 स्टेप में हम जो है प्रोसेस देखते हैं। तो कैसे हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सोचता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन भेजना है। सेकेंड, वो एनकोडिंग करता है, उसको कैसे भेजना है उसके बारे में। थर्ड, वो मैसेज करता है इन द सेंस वो मैसेज बनाता है, कौन सा डिवाइस, कैसे डिवाइस, टूल्स ये सब यूज करना है वो सोच के। फोर्थ, वो टूल, यानी टूल्स के बाद चैनल, कौन से मीडियम के थ्रू वो आपको भेजेगा वो डिसाइड करके वो आपको भेज देता है। फिफ्थ, आप उसको डिकोड करते हो। सिक्स्थ, आप उसको लिसन करते हो, आपको मिलता है, डिकोड करते हो, आप उसको सुनते हो, रिसीव करते हो। 7, आप उसको फीडबैक देते हो। ये हुआ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट अस रीड द लास्ट पैराग्राफ. If the sender is satisfied with the feedback from the receiver, the attempt is considered fruitful and process successful. If there is a partial misunderstanding or lack of understanding, then it results into complete failure of communication. In that case, the speaker has to make further attempt employing in different channel or medium. It should be noted at this point that language, words, scripts, symbols, picture are known as channel and presentation through oral, written expression or acting. These several means are considered as medium. The process of communication can be explained thus the following figure. तो अगर सेंडर आपके फीडबैक से सेटिस्फाइड हो जाता है, जैसे आपके कमेंट आते हैं, मेरे को लगता है हाँ ओके, लोगों को समझ में आ गया, बेस्ट, उनको वीडियो अच्छा लगा, इट मीन्स सेंडर सेटिस्फाइड हो जाता है। इसका मतलब जो प्रोसेस उसने स्टार्ट किया वो फ्रूटफुल प्रोसेस वो मानता है और सक्सेसफुल प्रोसेस मानता है। बट अगर फीडबैक नहीं आया, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई पार्शियल मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लोग वो कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाए, इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीटली फेलियर में देखा गया। इस केस में सेंडर क्या करता है, वहां रुकता नहीं है, क्योंकि उसको वो मैसेज कैसे भी उनको पहुंचाना है, तो दोबारा वो दूसरे कोई चैनल से वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, चैनल या मीडियम के थ्रू वो करता है। तो व्हाट इज चैनल एंड मीडियम, ये आपको पता चलना चाहिए। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज या वर्ड्स, जो सिंबल, ये जो बॉडी एक्शंस, गेस्चर्स मैं यूज करती हूँ या जो पिक्चर्स यूज करती हूँ, इसे चैनल बोला जाएगा। मीडियम यानी आपको मैं कौन से मीडियम से दे रही हूँ, ओरल से दे रही हूँ, रिटर्न दे रही हूँ, एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, एक्टिंग दे रही हूँ। तो हम वीडियो कैसे देखते हैं, ओरल, expression and even little bit acting is needed because facial expressions होते हैं, so that is acting. It is not acting like actor, but हमारा verbal के साथ, ओरल के साथ हमेशा एक फेशियल गेस्चर देखा जाता है, तो वो होता है, तो इसे मीडियम कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया गया। ये तो हमने थियोरेटिकल देखा, बट इसका एक फिगर भी आगे दिया है। लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। ओके, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे दिया जाता है, सबसे पहले नंबर 1 सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है, सेकेंड स्टेप एनकोडिंग का करता है। एनकोडिंग करके वो मैसेज को बनाता है और वो मैसेज को चैनल के थ्रू, यानी चैनल और मीडियम को यूज करके भेजता है। अब जो रिसीवर रिसीव करता है उसको वो डिकोड करता है, लिसनर एंड रिसीवर सुनता है, समझता है, फिर उसका फीडबैक, अब नीचे से देखो, लिसनर पॉइंट नंबर 6 से 7 नंबर पॉइंट 1 तक पहुंचता है, इस तरीके से पहुंचता है, 6 to 1 तक वो इस तरीके से फीडबैक मिलता है। इसका मतलब जो प्रोसीजर इस तरीके से यहां तक पहुंचा, उसका एक फीडबैक आया, मतलब प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। इवन यू कैन सी दैट इट लुक्स लाइक ए स्माइल, ठीक है, तो स्माइल यानी हर एक चीज कंप्लीटली फुल अप हुआ है। तो यहाँ पे खत्म होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
Next, it is method of communication. So let us start with this in a very detailed manner. As earlier, medium and channel plays an important role in the process of communication. Appropriate method of communications are used for different type of communication. The method of communication in which only two persons are involved will be different. Communication between an individual and group where there is one speaker, sender and many receivers, example classroom. In that case, the process of communication will remain long or short or complex and the method would change. तो जैसे कि हमने अर्लियर देखा, मीडियम और चैनल, मीडियम में ओरल, रिटन, ये रेदर देन द चैनल, लैंग्वेज, ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर. इसीलिए हमें अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना पड़ता है कम्युनिकेशन के अंदर. एंड यू नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड देखे जाते हैं. अगर हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अगर मुझे आपसे पर्टिकुलरली अकेले में बात करना है, 1 to 1, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो उसका कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल अलग देखा जाता है. बट अगर मैं इंडिविजुअल हूं और अब मुझे पूरे क्लास के साथ डील आउट करना है, यानी मैं इंडिविजुअल और पूरे ग्रुप के साथ मैं डील आउट करती हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लासरूम दे दिया गया, तो वैसी जगह पे जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो काफी बार लंबा हो सकता है, काफी बार छोटा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. तो उस जगह पे जैसा कन्वर्सेशन हो, जैसा कम्युनिकेशन हो, उस तरीके से हमें मेथड को चूज अप करना पड़ता है. Let us move on with the further question. Contrary to it, when communication takes place between a group and individual, where the speakers, sender are many and receiver only one, example press conference, then in that case the process and method of communication would change. In addition to this, when the communication is between two group, example group discussion, then in that case too the process and the method of the communication would vary. So also in case when the speaker and receiver, whether individual or group, or at one place face to face, example classroom, then the process of communication, selection and implementation of channel medium would be of a particular type. तो ये तो बात हुई थी जब एक इंडिविजुअल स्पीकर और एक लिसनर होता है. बट कॉन्ट्ररी टू इट में इसके ऑपोजिट में अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन काफी बार ग्रुप के बीच में भी देखा जाता है. जैसे पूरा एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल को उसको आंसर देना, यानी पूरा एक ग्रुप हमसे कम्युनिकेट करता है और हमें पर्टिकुलरली एक एक के साथ बात करना है, उस समय पे उसका मेथड अलग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे सेंडर्स है बट रिसीवर सिर्फ एक ही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लो, बहुत सारे प्रेस मीट पे आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लिया जाता है तो एक आंसर देने वाला होता है, बहुत सारे क्वेश्चनिंग होता है, वो फटाफट क्वेश्चनिंग देते हैं और एक को उसको आंसर, यानी रिसीवर को फटाफट उसको आंसर फीडबैक देना पड़ता है. तो वहां पे भी कम्युनिकेशन का जो मेथड होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है. ये तो 1 to ग्रुप हुआ, ग्रुप टू 1 हुआ, अब ग्रुप टू ग्रुप. थर्ड पोर्शन जो है वो ग्रुप टू ग्रुप है, यानी दो ग्रुप बैठा गया, जैसे कि आपने डिबेट वगैरह देखे हो, ठीक है, डिबेट देखा होगा ना, एक ग्रुप कहता है ये होता है, एक ग्रुप कहता है नहीं होता है. तो वहां पे जो डिस्कशन या कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां पे जो मेथड और प्रोसेस देखा जाता है वो बिल्कुल अलग होता है. ऊपर जो दो सिचुएशन डिस्कस किए उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी केस हो, स्पीकर हो, रिसीवर हो, वेदर वो इंडिविजुअल हो कि ग्रुप हो, फेस टू फेस बात कर रहा हो या कोई कम्युनिकेशन टूल यूज कर रहा हो, क्लासरूम में, या कोई भी प्रोसीजर हो, बट उस टाइम पे उसका जो प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का, उसका सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैनल जो होता है, मीडियम जो होता है, वो पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए. So let us read that in a very detailed manner. Whereas the speaker and the receiver, whether of channel medium, would be of particular type, whereas when the speaker and receiver, whether individual or group, are not at the same place and or connected through the some means of communication, telephone, then the process of communication would vary. Communication using the channel and medium means of mass communication has become easy and within reach. Removing a geographical distance, the method of communication can be understood in the following way. तो अगर आप बात करते हैं, ये तो बात हुआ फेस टू फेस सामने बैठे हो, तो उस टाइम पे हम कैसे चैनल यूज कर रहे हैं, कैसे मीडियम यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. बट इसके अलावा अगर स्पीकर और रिसीवर दूर दूर है, जैसे हमारी एग्जांपल लेते, ग्रुप ऑफ पीपल ले लो कि इंडिविजुअल सेम प्लेस में हो, तो वो एक अलग तरीके से, जैसे क्लासरूम में हम बात करते हो
तो वो एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन होता है। अभी अगर हम बात करते हैं, अगर हम अभी कम्युनिकेट करते हैं तो ये अलग है। क्यों? क्योंकि आप अभी दूर हो और मैं दूर हूँ, तो मैं आपको जो समझाती हूँ उसको आपको कमेंट में फीडबैक देना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा। जबकि क्लास में 1-on-1 देखा जाता है तो मैं जैसे आपको समझाऊंगी, डाउट हो तो आप हैंड रेज करोगे, तुरंत आपका कम्युनिकेशन मुझसे होगा। इस तरीके से अगर आप दूर भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन में आजकल बहुत सारे टूल यूज किए जाते हैं, जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर चैनल और मीडियम से वो अच्छी तरीके से किया जा सकता है, और वो बहुत ही ईजी भी हो गया है कम्युनिकेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने का। जियोग्राफिकल डिस्टेंस, जैसे कि अभी मैं नडियाद हूँ, आप आनंद हो, तो जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस होता है वो भी इजीली हटाया जा सकता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से। तो मेनली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटन होगा, जो कि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रखेगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the process of communication in a very detailed manner. Then we have seen the method of communication. What is the process of communication? When a process of communication is considered, when a sender or a person is thinking to exchange his idea, his concept, its thought to another person, and that person is ready to accept that. After accepting, when he is giving the feedback, that is considered as the process of communication. When you get the feedback, then it is an effective and fruitful communication process. So what are the major steps that is seen in the process of communication? Let us discuss that in a very well manner. For example, we have seen that I am the sender and I want to travel to another state. अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, सो आई एम अ sender, or I can say that I am a sender of the message. I just want to travel to Ahmedabad. जो I just want to ask to the bus depot that what time the buses are there. मुझे अहमदाबाद ट्रैवल करना है और मुझे एक बस में टेलीफोनिक इंक्वायरी करना है कि कितने बजे कौन सा बस जाता है अहमदाबाद के लिए और उसका प्राइस क्या है. So first of all, as a sender, what I should do? First of all, I should form an information कि मुझे इस चीज के बारे में जानना है. As I decided, so I am a sender, transmitter, or we can say that messenger. After that, I have to encode. What is the encoding? कि मुझे क्या पूछना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मुझे कैसे पूछना है, कहाँ से पूछना है? तो मुझे बस डेपो से पूछना है, फोन के थ्रू पूछना है, और मुझे ये पूछना है कि कितने बजे का बस अहमदाबाद तक है और वो क्या चार्ज लेता है. सो थर्ड, इट आफ्टर एनकोडिंग व्हाट आई विल डू? आई विल मैसेज इन द सेंस आई विल कॉल. मैंने कॉल लगा दिया. अब मैंने कॉल लगा दिया, अब कॉल सामने वाला उठाएगा, तो उठाने तक मुझे वेट करना पड़ेगा. तो मैंने मैसेज तो फॉर्म अप कर दिया दिमाग में कि कितने बजे कौन सा बस क्या जाने वाला है. ये मैंने सोच के फोन लगा दिया, यानी मैसेज कर दिया. चैनल एंड मीडियम, फोर्थ ऑप्शन इज चैनल एंड मीडियम. व्हाट इज चैनल? मैंने क्या चैनल यूज किया? मैंने हिंदी लैंग्वेज में पूछने का सोच लिया, और मैंने जैसे ही फोन उठाया मैंने पूछा कि भैया मुझे अहमदाबाद तक का बस चाहिए, कितने बसेस हैं और कितने घंटे बजे है और क्या टाइमिंग में जाएगा. मैंने क्या ओरल कम्युनिकेशन यूज किया, मीडियम मैंने ओरल यूज किया, लैंग्वेज मैंने हिंदी यूज किया. तो इस तरीके से चैनल एंड मीडियम आई हैव यूज्ड. तो फोन के थ्रू मैंने ये कर लिया. ठीक है. सो नेक्स्ट, आफ्टर दैट डिकोडिंग. उसने रिसीव कर लिया, उसने सुन लिया. डिकोडिंग मीन्स ही हैज रिसीव्ड माय मैसेज, ही हैज अंडरस्टूड माय मैसेज. आफ्टर दैट लिसनर, लिसन करने के बाद वो क्या करेगा? उसको समझेगा, वो जो मैसेज है उसको डिकोड करके अपने अंदर उतारेगा. आफ्टर दैट, ये सब प्रोसेस 1 सेकेंड की होती है, बट ये एक एज ए स्टेज वी आर सीइंग. आफ्टर दैट ही विल गिव द फीडबैक. ही विल से दैट 9 to 11 एक बस है, उसका प्राइस ये है. 10 to 11 एक बस है, उसका प्राइस ये है. यानी या जैसे वो मुझे फीडबैक देता है, यहाँ पे मेरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रूटफुली खत्म होता है, क्योंकि मैंने जो मैसेज उसको दिया उसने मुझे फीडबैक दे दिया कि इतने बजे इतने बस है और ये रेट पे देखा जाता है. इट मीन्स नाउ माय प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड. सो इन दिस मैनर, व्हेन अ सेंडर इज सेंडिंग अ मैसेज एंड द रिसीवर इज अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग द फीडबैक, देन इट इज कंसिडर्ड एज द फ्रूटफुल और सक्सेसफुल प्रोसेस. अगर ये प्रोसेस, अगर उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब उसे समझ में नहीं आया, तो अगेन आई विल आस्क दैट कि सर आई जस्ट वांट टू नो कि एट व्हाट टाइम buses are going to travel to Ahmedabad. What are the different time and what is the charge of that bus charge? तो इस तरीके से मैं पूछूंगी तो समझ में आएगा, तो वो मुझे आंसर देगा. तो जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक वो प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं माना जाता है.
इसके बाद हमने मेथड्स देखा. व्हाट इज मेथड? मेथड में हमने ये देखा 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सकता है, 1-to ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, ठीक है, ग्रुप टू 1 हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस. रेदर देन दैट वी हैव सीन ग्रुप टू ग्रुप, जो डिबेट्स होता है, ग्रुप टू ग्रुप डिस्कशन देखा जा सकता है. इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं. इवन हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं या तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो ये जो कम्युनिकेशन हमने देखा, ये सारे कम्युनिकेशन एक दूसरे से अलग तरीके से होते हैं. जब हम 1-to-1 करते हैं तो तब कम्युनिकेशन का प्रोसेस और मेथड अलग होता है. जब हम 1-to ग्रुप करते हैं तब अलग होता है. ग्रुप टू 1 होता है तब अलग होता है. इस तरीके से अलग अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाता है और मेथड्स देखे जाते हैं. इसीलिए हर एक जगह पे मेथड पर्टिकुलरली प्रॉपर और पर्टिकुलर होना चाहिए, ये माना जाता है. जो कि मेथड में ओरल एंड रिटन देखा जाता है. और भी कई सारी है, बट ओरल एंड रिटन थोड़ा मेन माना जाता है. 6 to 7 टाइप्स मेथड्स देखे जाएंगे. So we will see that topic in a very detailed manner on the next video. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.